of carboxylic acid. So definitely this must be in the you can write here like the reaction of benzene ring में जब COOH जुड़ा हुआ होगा तभी ये reaction होगा. And so for that purpose we can see here, यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें जब आप COOH की बात करते हो तो COOH में क्या है हमारे पास, this COOH when attached to benzene ring is in fact COOH when attached to benzene ring is this one. अब यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो ये COOH जो ग्रुप है हमारे पास, ये this group is of what type, so we can say this is minus M ग्रुप है, ये वाला minus M है, minus I है. And further क्योंकि CO2 यहाँ से निकल सकता है, so this can be a good leaving group, can be a good leaving group. Good leaving group. We also have studied कि जब भी EAS reaction होता है during EAS electrophilic aromatic substitution, यदि कोई electron withdrawing group है, so that directs the product to meta. यानी उस केस में meta हमारा major product बनता है. Meta is major और बाकी ortho para minor होंगे. And then this is further, this is deactivating. Electron withdrawing है तो ये deactivating है. And therefore basis this we can say in this particular case, यदि आप इसमें यहाँ पर COOH लेते हो तो COOH का रिएक्शन यदि मैं लिखूँ यहाँ पर ऐसे, ये COOH लिया मैंने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिएक्शन कराया कुछ इस तरीके से. एक में हमारे पास है CH3 Cl AlCl3, then I am taking up CH3 COCl AlCl3, then I am taking up conc HNO3 H2SO4, conc HNO3 plus H2SO4. Then you can take here fuming H2SO4, fuming H2SO4, and one more reaction that required very much essential और बहुत ही बढ़िया वाला रिएक्शन जिसकी बात करें यहाँ पर, तो जब इसमें हमने Br2 का ऐड कर दिया, so what is expected here, so Br2 और simple ले लिया हमने यहाँ पर, just take this one like Cl2 AlCl3. अदर रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कुछ और रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पर जैसे एक और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर COH है, यहाँ पर KS कर दिया, KS छोड़ो यहाँ पर सीधा हमने यहाँ पे ये ले लिया COH है, NaOH CaO लगा दिया, NaOH and CaO. This is not example of that one, so just leave it. So what are the corresponding products in these cases? इन सारे cases में जो products बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, बस इसी को हमें देखना है. And so just have a look at that. तो इन सबको देखो जरा एक बार आप, and then try to predict the products in each of these cases. तो क्या सब बन जाएगा? So have a look at that and write the product like this one. So here we will be having this COOH और meta position पे CH3 लग गया. Then second वाले में COOH होगा यहाँ पर और ये COCH3. Again we have this one C double bond O और ये CH3 यहाँ पे लगा दिया हमने. Then further we can take it out like that. यहाँ से conc HNO3 है तो फिर से meta position पे ही NO2 लगाएंगे. So just attach NO2 to that position. COOH और ये NO2 लगा दिया हमने यहाँ पर. Then we have SO3H, COOH and then there is SO3H. Then we have this Cl2. So again at meta position this COOH with this Cl. ये वाला यहाँ पे लगा दिया हमने. ठीक. So that is how we can do this particular reaction. ये वाला होगा EAS reaction in case of benzoic acid में कुछ ऐसे हम लोग बता सकते हैं. And so that's the reaction we have for electrophilic aromatic substitution reaction of carboxylic acid का ये वाला reaction है. Reactions of acid derivative. So बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शंस हैं that we already have done. तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसमें एसिड हैलाइड की. So first one is acid halide.
एसिड हैलाइड मतलब क्या हो गया, RCOCl. रिमेंबर that this RCOCl is what, this is called acyl chloride कह सकते हैं इसको, या acyl halide बोलते हैं इसको. इसकी खूबी ये है कि इसमें कार्बोनिल कार्बन है. so this the property of this compound is what, दो चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and that's why the reactivity order is driven by that particular thing. One is this is presence of C double bond O, presence of C double bond O. Therefore इसलिए क्या होता है यहाँ पर, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. सो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली गेटिंग अटैक टू दिस वन. सेकेंड थिंग इज व्हाट, लिविंग ग्रुप है. यहाँ पर लिविंग ग्रुप है तो यानी यहाँ से बहुत ही आसानी से लीव करता है, एंड देयरफॉर वी आर सेइंग देयर इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन. एसाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वही फ्लावर वाला मैकेनिज्म जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं. उसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं इसी रिएजेंट से एसोसिएटेड. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर, आपको याद होगा कि हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज किया था RCOCl के साथ. सो व्हाट वी हैव गॉट वाज, वहां से हमें क्या मिला था, उस केस में हमें मिला था क्या, वो ये चीज था कि हमारे पास हंस डायरेक्ट, जिसमें हम लोगों ने कहा था रोजनमंस रिएक्शन, एल्डिहाइड बनता है. तो उन्हीं रिएक्शंस के लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं. So have a look at that. This RCOCl का पहले कुछ सिंपल रिएक्शंस, फिर कुछ नेम रिएक्शंस, इन सब के बारे में बात करेंगे. तो पहला जो रिएक्शन इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे that is called hydrolysis. So hydrolysis of acid halide, hydrolysis of acid halide. दिस इज RCOCl लिया हमने यहाँ पर. आप इसमें बेस कैटालाइज ले लो या एसिड कैटालाइज ले लो, कोई सा भी लोगे तो दोनों ही केसेस में रिएक्शंस होंगी. OH- और ये H2O है हमारे पास. OH- अटैकिंग ऑन दिस, ये गया इधर, ये वाला यहाँ पर और ये बाहर. एंड सो यू विल हैव दिस RCOOH है जो कि बेसिक मीडियम है, तो कभी भी इसमें एसिड तो रहेगा नहीं. सो दिस OH- विल टेक आउट प्रोटोन. सो RCOO- के फॉर्म में ये रहेगा. तो इसको आप एसिडिफाई कर दोगे, H+ ऐड कर दोगे, तो जाकर के ये वाला क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा. ठीक, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इसके बाद हमने ऑलरेडी जो पढ़ रखा है उसमें रोजनमंस रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, रोजनमंस रिएक्शन. एंड इन दैट रिएक्शन, रोजनमंस रिएक्शन की हम बात करें, so from that we have understood this RCOCl plus Lindlar's catalyst, Lindlar's catalyst is leading to RCHO, ये बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पर. इसको कहते हैं रोजनमंस रिएक्शन. ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना है. ये बोर्ड में भी और हर जगह के एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है. सो प्लीज मेक श्योर यू शुड नॉट फॉरगेट इट. इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे रिएक्शंस की बात करूँ, सो अदर रिएक्शंस लाइक दैट, अदर रिएक्शंस में जैसे अब इस RCOCl का रिएक्शन मैंने करा दिया, RCOCl का रिएक्शन करा दिया CH3 होल ट्वाइस CD कैडमियम से. दूसरा मैंने यहाँ पर CH3 MgBr से रिएक्शन करा दिया. so what will happen, and then we have this one, then you can take this RONA से रिएक्शन करा दिया, RONA, then I can take CH3 C double bond O Na minus Na plus, इससे रिएक्शन करा दिया, या फिर अमोनिया से रिएक्शन करा दिया. सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, ये CH3CD है यानी ये वाला मेटल है, तो यहाँ पे एक कार्बन आयनिक कैरेक्टर होगा. ये वाला गया यहाँ पर और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ और ये बाहर. सो दिस इज फॉर्मिंग RCO और ये CH3 बना देगा, कीटोन बन गया. CH3 MgBr में क्या होता है, यही रिएक्शन, चूंकि CH3 MgBr ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले तो यही वाला बनेगा, RCOCH3 बनेगा, और फिर जब रिएक्शन होगा RCOCH3 का इसके साथ, so this would be leading to what, CH3 and OH here. यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, O- अटैकिंग ऑन दिस CO और Cl निकल गया बाहर. and so here you have this RC double bond O and here it is OR, ये आ गया. इसमें भी क्या होगा, ये वही वाला रिएक्शन है, थोड़ा सा अंतर ये होगा कि RC डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया. और विद अमोनिया दिस विल बी फॉर्मिंग एमाइड, RCONH2 बन गया. So this is the reaction that we can
टेक दिस, इस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये सब एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड का ये वाला रिएक्शन है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो टेक इट आउट लाइक दिस कि RCOCl को यदि मैं एसाइलेशन की बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दूं, जैसे RCOCl में हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस बेंजीन रिंग एंड AlCl3 ऐड कर दिया, just add AlCl3, so you will have this one, ये COCH3 बन गया हमारे पास, CO और ये R आ गया, this is called acylation reaction है ये वाला। So these are the reactions associated with this RCOCl। इसके साथ कुछ नेम रिएक्शंस बचे हुए हैं, तो उन नेम रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। So that we'll see कैसे वो नेम रिएक्शंस होते हैं और मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। So that's all for today, आज के लिए सिर्फ इतना ही।